थी, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने सब किया एंड आई हैड क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट, सब कुछ था, लेकिन फिर भी दैट प्रमोशन डिड नॉट गो थ्रू। उनका एक ही गुरु मंत्र था कि भाई खुद को कर बुलंद इतना। लाइफ इज लाइक अ हिल, या तो आप ऊपर चढ़ोगे या आप नीचे जाओगे। आप अगर एक जगह रुकने की कोशिश करोगे तो आप धीरे धीरे नीचे चले जाओगे। Hello guys, today with us is Mr. Abhilekh, who is currently working in Microsoft as Principal Software Manager. And first of all, I would like to thank you, sir, for joining us today. Sir, it will be great. Thanks. It will be great अगर आप हमारी audience को अपने current role और अपने बारे में introduction देते हैं. Sure. So, hi everyone. So I did my engineering from NSIT, Delhi, Dwarka, in IT, and that was from 2004 to 2008. उसके बाद I got campus hired into Microsoft. So as part of that hiring process, I was with as an SDET role, that is Software Development Engineering Test. और फिर I was with Microsoft for 2008 till 2010. उसके बाद I moved to Amazon as a software development engineer, and that was in 2010. And I was with Microsoft in Hyderabad, or 2010 maybe. I was with Microsoft Hyderabad, and then I moved to Amazon Hyderabad. So 2010 से 2014 तक I was in Hyderabad, और मैंने Amazon की थी as software development engineer. Then I got promoted to SD2, software development engineer 2, और उसके बाद फिर I did a path transition and my role got changed and I became software development manager. So 2014 में दिल्ली में it was being started, and as I was born and brought up in Delhi, so I moved to Delhi as part of the same. So in Delhi I started with the Amazon Development Center. और फिर 2014 से 2019 I was with Amazon, और फिर December 2019 onwards till date I joined Microsoft, और Microsoft में Principal Engineering Manager as part of Special Clouds team. और जब मैं Amazon में था तो मेजरली मैंने 3 टीम्स में काम किया था, वेब स्टोर, then marketplace, Amazon marketplace, and then it was last mile deliveries and ads. So this is my brief so far. That's a wonderful journey so far, sir. And I guess आपको बहुत सारा experience है industry का, so it will be very useful for the students to be a video देख. So sir, जैसे कि आपने journey अपनी बताई, like firstly Microsoft में आप face हुए, then Amazon, then again to Microsoft. So like sir, in this between, what was the learning, like क्या क्या चीजें आप college से लेके पूरी journey में आप सीखे, and like what were your successes and failures जो आपको इसमें लगा, and आपने उसको कैसे overcome किया? So I think जो throughout the career जो learnings हैं और success, I think that goes hand in hand. और I believe कि जो failures हैं, जो आपका those are the moments when you learn a lot. तो it is जो आपके failures हैं, जहाँ पे आपको कुछ आप fail तब होते हो जब you are going beyond what you are capable of. And so वहाँ पे जो learning होती है वो I think that is very valuable, and throughout the career I have had multiple failures and success tied together. तो given कि हम जिस audience के लिए बात कर रहे हैं, तो I would like to talk about the initial set of failures in my career जो मुझे initially हुए, because for this audience that would be वहाँ की जो learnings है, I think that can be leveraged by a lot of people.
तो आई थिंक टॉकिंग अबाउट माय फेलियर्स, जब भी कोई इंडस्ट्री में जाता है तो सबसे पहले प्रमोट कब होंगे, प्रमोट कब होंगे, प्रमोट कब होंगे, राइट? तो जब अमेजोन में भी मैं गया तो एच डी वन आई ज्वाइंट, तो फिर आई वांटेड टू मूव टू एच डी टू. That was at that time, उस समय the bar and the exposure which I had was very limited and the bar was really high. तो उसमें देयर वर अ लॉट ऑफ सेटबैक्स, और कुछ ऐसे भी सेटबैक्स थे कि भाई ऑलमोस्ट सब कुछ जैसे जैसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से मैंने सब किया एंड आई हैड क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट, सब कुछ था. लेकिन फिर भी दैट प्रमोशन डिड नॉट गो थ्रू. तो मेरे लिए एक टाइप का, आई थिंक वो कॉलेज के बाद, फर्स्ट इंडस्ट्री में आने के बाद, वो एक टाइप का एक झटका था. मुझे लग रहा था कि भाई इतनी मेहनत की, मतलब 12-12 घंटे लगाए और फिर भी ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ. तो आई थिंक अगर उसमें वापस जाता हूँ मैं, और वो मैं जब समझ में आया कि क्यों नहीं हुआ, तो उसके कुछ की कारण थे. तो फर्स्ट वन वाज दैट, जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, जब हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, तो उसमें इट इज मोर लाइक यू, इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल कि आप क्या कर सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन आपने क्या किया. और फिर जब वो प्रमोशन होता है तो आपको जो जो चीजें अगले लेवल से एक्सपेक्टेड है वो सारी आपको करनी चाहिए. आप ऑलरेडी वो कर चुके होने चाहिए टू प्रूव कि भाई यू आर एट नेक्स्ट लेवल. तो दैट इज, उससे आपका प्रमोशन होता है. तो मेरे केस में क्या था कि मैंने बहुत मेहनत मारी थी, जैसा जितना प्रोजेक्ट में चाहिए था उससे ज्यादा दिया था. लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो नेक्स्ट लेवल के लिए, जो हमारा एज अ की डिसीजन हुआ था विद होल मैनेजमेंट एंड ऑल, कि ये चीजें नहीं करेंगे. सपोज जैसे हमारा प्रोजेक्ट की टाइट डेडलाइन थी, तो हम यूनिट टेस्ट केसेस नहीं लिखेंगे, हम टेस्टिंग नहीं करेंगे. हमारा से ऑपरेशनल लोड जो है वो उसमें, क्योंकि हमारी टीम छोटी टीम थी, फोकस काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे, तो वो हमारा ऑपरेशनल लोड नहीं हो रहा था. तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो लेकिन जब प्रमोशन की बात आई, तो फिर उसमें ये कहा गया कि भाई ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो करनी ही करनी है. तो आई थिंक वहां से मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी कि फॉर एनी जॉब और एनी रोल there are certain negotiable things, there are non-negotiable things. So you should understand what are non-negotiables, what are negotiable things, and you should ensure कि भाई negotiable things पे you are not compromising, and non-negotiable things are the other side of story. But I think जो वो 6 महीने का बीच में गैप आया, वो मेरे लिए, मतलब एज ए टोल्ड कि भाई फेलियर एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड, राइट? तो वो एक बारी को तो वो झटका लगा कि भाई 6 महीने डिले हो गया, ये हो गया. लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि 6 महीने पहले एक क्वेश्चन था, मैं पूछता था कि मेरा कब होएगा. उसके बाद 6 महीने बाद लोगों का ये क्वेश्चन आता था, अभी तक इसका हुआ क्यों नहीं. तो वो जो एक चेंज था कि मतलब पहले आप पूछ रहे थे कि आपका कब होएगा, उसके बाद लोग आपको पूछेंगे अभी तक हुआ क्यों नहीं. तो वो वाला जो चेंज था, दैट वाज समथिंग जो आपका डे इन डे आउट आपके कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज ले आया, हर चीज में चेंज ले आया. तो दैट वाज समथिंग विच आई रियली वैल्यू. और आई थिंक उससे एक और मेरी जो लर्निंग थी कि भाई इट इज बेटर टू बी अंडर वैल्यूड देन टू बी ओवर वैल्यूड. अगर आप अंडर वैल्यूड हो गए, अगर आपकी क्षमता ज्यादा होगी देन व्हाट यू आर गेटिंग, तो यू वुड ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस. और डेली डेली बेसिस में आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, रादर देन आप एक टाइम को आप किसी भी तरह से आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए जहां पे अभी आप एक्चुअली यू आर नॉट लाइक देयर हियर. तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस गिरेगा, उससे बेटर है कि उससे हिट लेके यू बिकम अंडर वैल्यूड एंड यू सस्टेन देयर, मतलब आप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाते रहो, बाकी सब कुछ आ ही जाएगा. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द लर्निंग देयर. और उसके अलावा जो मेरी लर्निंग थी वाज आल्सो अराउंड कम्युनिकेशन. तो हम काम बहुत करते हैं, राइट? हर कोई काम करता है, लेकिन आप कैसे काम को प्रेजेंट करते हो, इवन बिफोर एंड आफ्टर. क्योंकि जैसे हम अपने फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना, एक कंसेप्ट होता है डिस्टेंस, कि आपने कितना यहाँ से वहां तक आपने कितनी दूरी नापी, राइट? और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट इज इफेक्टिवली आपने कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, राइट? आप एक सर्कल में 10 बाई चल लोगे तो आप शायद 1 किलोमीटर
4 किलोमीटर चल चुके होंगे, लेकिन अगर आप वहीं के वहीं वापस पहुंच गए तो आपकी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट जो है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन सही है और आपने काम उठाने से पहले ये इंश्योर कर लिया कि भाई इट इज इन द राइट डायरेक्शन, तो योर एम हैज टू बी कि योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर। ऐसा नहीं हो कि आप गोल गोल एक ही चीज में घूमे जा रहे हो। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि भाई कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन की वजह से आप जो चीज कर रहे हो, जो सामने वाला आपसे चाह रहा है या जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों मेल नहीं खाती। तो उसमें भी आई थिंक दिस इज वन ऑफ द की। और उसको मैं वैसे पुट इन करता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत थकते हो, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी की उसकी असल में वैल्यू है। तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हो, आप डेल्टा क्या क्रिएट कर रहे हो, रादर देन आपने कितना चला। क्योंकि आपने जितना चला उसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने कितना डेल्टा क्रिएट किया उसकी बहुत वैल्यू है, उसी की ही वैल्यू है। तो वो उसको दिमाग में रखना चाहिए। करेक्ट सर, मतलब काफी सही पॉइंट। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली थियरी तो लाइक इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में लाइक हर जगह ही ये तो चीज देखने को मिलती है। तो लाइक कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप एनएसआईटी से हैं एंड लाइक अभी आप देखेंगे तो बहुत ही स्टूडेंट्स का जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि वो कुछ जो गिनी चुनी कंपनीज हैं टॉप की, जिसमें सांग। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, अ, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही। हाँ। अभी ठीक है सर? हाँ अब ठीक है। ओके। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाइक अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो इस टाइम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सबका एक ड्रीम होता है कि उनको किन्हीं टॉप कंपनीज में जाना है जो अपने अपने मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनमें से एक कंपनी में प्लेस हुए विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट, जो आपने कैंपस प्लेसमेंट में ही आपको वहाँ पे। तो आपने सर खुद को कैसे प्रिपेयर किया ऐसी कंपनीज के लिए कि आप recruit के लिए? यार मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने ऐसा स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी, राइट। लेकिन अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखूँ, अगर मैं अपना एनालाइज करूँ कि भाई व्हाट वाज द डिफरेंस, तो हमारे कॉलेज में जैसे हम 2 जने प्लेस हुए थे। तो आई थिंक हाँ माइक्रोसॉफ्ट में उसका तो काफी अच्छी प्लेसमेंट लोगों की हुई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर्स में से नहीं था। मतलब अगर आप 60 बच्चों का बैच है तो 30 में भी नहीं था मैं। तो इट वाज नॉट, मतलब मेरा एक प्लेस होना काफियों के लिए शॉकिंग भी था कि यार ये इतनी जल्दी कैसे प्लेस हो गए। लेकिन उसके पीछे अगर मैं देखूँ ना, और ये मेरा एक जैसे इंटरव्यू के बीच में भी एक ने पूछा था, एक इंटरव्यूअर ने, कि भाई तुम्हें क्या लगता है विल यू बी प्लेस्ड। मैंने कहा आई वाज वेरी वोकल देयर एंड आई सेड कि भाई इफ यू जस्ट आस्क बेसिस सम डोमेन नॉलेज कि ये तुम्हें ये सिंटैक्स आता है ये नहीं आता, तो देन आई माइट नॉट बी प्लेस्ड। लेकिन इफ यू आस्क बेसिस एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स देन आई वुड बी प्लेस्ड, राइट। सो मेरा मेरा फंडा एकदम सिंपल था कि मेरे कॉलेज में भी जितने नंबर आए या मैं कहीं पे भी कुछ आए, हालांकि मेरे कॉलेज में नंबर ज्यादा नहीं आए, लेकिन जो भी आए वो उतना आया कि दैट रिप्रेजेंटेड द अमाउंट ऑफ थिंग्स व्हिच आई अंडरस्टूड। तो जो एसेंशियली जो मुझे समझ में आ रहा था बस वही नंबर आ रहे थे मेरे, राइट। तो इट इज नॉट दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, लेकिन दिस वाज एक तरह से जो शुरू से मेरा एक वो था कि मैं चीजों को समझ के करता था रादर देन रटने के। मतलब रटाफिकेशन मुझसे बचपन से नहीं होती थी, राइट। तो उसका रिजल्ट भी ये है कि ऐसी कंपनीज में मैं फिर भी सिलेक्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन अगर वही कुछ ऐसी कंपनीज होती जो सिंटैक्स बेस्ड पूछती है तो वहां पे मैं नहीं हो सकता था, राइट। तो आई थिंक कॉलेज के परस्पेक्टिव से, इवन फ्रॉम द प्रिपरेशन परस्पेक्टिव, यू हैव टू बी क्लियर कि आप प्रोडक्ट कंपनीज में जाना चाहते हो या आप दूसरी जो सर्विसेज टाइप की कंपनीज हैं उसमें जाना चाहते हो, और जिसमें जाना चाहते हो या दोनों में जाना चाहते हो। दोनों की अगर आप प्रिपरेशन की बात करो तो आई वुड से बहुत अलग अलग है। अगर आप सिंटैक्स वाली जो अगर आप सर्विसेज टाइप की कंपनी में जाओगे तो उसमें बहुत फोकस होएगा कि भाई आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई एक सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, और आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, उसके न्यूएंसेस पता होने चाहिए कि भाई हाँ जावा के इस वर्जन में ये हुआ था और इसके बाद वाले में ये हुआ था, इस टाइप की चीजें, राइट। दैट इज वो एक अलग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है। और अगर प्रोडक्ट कंपनीज की आप बात करो तो आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, राइट, तो उसमें ये होता है कि जहां तक बंदे ने पढ़ा हुआ है वहां तक तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं होता। उसके बाद से जो उसको नहीं पता
उस टेरिटरी में जब आ जाता है तो देन हाउ द अदर पर्सन इज रिएक्टिंग, जो उसकी नॉलेज है उसको वो कैसे अप्लाई कर रहा है, वो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो अगर आप इस डोमेन की कंपनीज देखोगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट होगी, अमेजोन होगी, गूगल होगी, तो वो आपको क्या ट्राई करेंगे कि अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो उसकी कोई एजम्पशंस होंगी उनको चेंज कर देंगी, ताकि वो, अगर आपको सिर्फ रटाफिकेशन से वो आंसर पता है तो वो नहीं वैल्यू होएगा। लेकिन अगर आप समझ समझ के हर चीज करोगे तो दैट वर्ड चाहे कम करो, लेकिन आप उसको समझ के करो और उसको ये देखो कि आगे उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको। यू शुड थिंक इन दोस टर्म्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बाइनरी सर्च ट्री है, राइट। बाइनरी सर्च ट्री में हमें पता है कि भाई ये लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी होगी और ये ऐसे जाएगा, आप ये रट सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप इसको एज अ कंसेप्ट समझो तो आप ये समझो कि अगर हम हर एक इसको हमने मल्टीपल लेवल्स पे तोड़ा है और हर लेवल पे हम अपना प्रॉब्लम सेट को आधा आधा करे जा रहे हैं। जैसे बाइनरी सर्च में हमारा क्या होता है कि फुल एन डिजिट्स का नंबर है एन, उसमें से हम बोलते हैं कि एन बाई टू एक एक हमारा इंटरेस्ट का, एक हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, और जो इंटरेस्ट का नहीं है उसको फेंक दो, जो है उसमें आगे चलते रहो। तो ऐसे आपने हर बाई हर एक लेवल पे प्रॉब्लम को आधा 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 बांट दिया, तो उससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। अगर आप इसको ऐसे कंसेप्ट की तरह समझोगे कि भाई ये हमारा ऐसे 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 किया और आपको नेक्स्ट टाइम कहीं पे कुछ अप्लाई करना है, तो उसको इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप वही बाइनरी सर्च ट्री ऐसे होता है, इसका कोड ऐसे लिखा जाएगा, वो रटाफिकेशन होगी, तो फिर वो अलग लेवल पे होगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं करना चाहिए, आई एम सेइंग कि समझना सबसे जरूरी है। उसके ऊपर जो आपने उसको ब्यूटिफाई करने के लिए जो चीजें की, जो ऑप्टिमाइज करने के लिए की, वो करो, बहुत अच्छा। लेकिन सबसे पहले इंजीनियरिंग में आए तो पहले समझ के चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सर, इट वाज लाइक हम लोग भी यही चीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कॉल के थ्रू, और आप लाइक आपका इंटरव्यू लेके जैसे अभी पूरा पता चला, आई गेस ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लाइक जहाँ तक की जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिले होंगे, कई हर स्टेज पे आई गेस एक चैलेंज मिला होगा, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, आप कैसे ओवरकम करते हो उन चैलेंजेस को जो भी आपके सामने आते हैं? यार लाइफ में ना अगर स्ट्रैटेजी की बात करें ना, बहुत लिमिटेड स्ट्रैटेजी होती है जो आपकी सक्सेसफुल होती है। तो मतलब मेरे मेरे एक अमेजोन में मेंटर थे, उनको मैं गुरुजी कहता था, राइट। और वो जैसे जब मैं HD1 HD2 था तो तब से वो मेरे मेंटर हैं। हालांकि उनसे ज्यादा मैंने कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेडिकेटेड मेंटरशिप की है, राइट। लेकिन उन्होंने जो एक जैसे लाइफ के क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो चीजें बता दी ना, वो एक ऐसी चीज होती है जो आपके साथ इट स्टिक्स विद यू थ्रू आउट द लाइफ, हाँ। तो अगर मैं उसको हिंदी में बोलूं तो उनका एक ही गुरु मंत्र था कि भाई खुद को कर बुलंद इतना, राइट। तो देयर वुड बी केसेस व्हेन यू would have challenges, there would be cases when things are not going in your favor, जब आप सही कर रहे हो तब भी आपके अगेंस्ट चीजें जाएंगी। तो उस पॉइंट पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो एकदम आप हताश होके निराश होके आप कहो कि यार ये नहीं हो रहा, राइट। दूसरा है कि यू अप योर गेम, you go to the next level. I think the strategy or the thought process, if you think that ये जो मेरी obstruction आई, that is nothing but that is people challenging me and helping me grow to the next level, right? Use that as an opportunity to not only like get bogged, go ahead और नेक्स्ट लेवल पे उसका सोचना शुरू करो, उसको नेक्स्ट लेवल पे अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ। मतलब डोंट थिंक अबाउट कि भाई इस मैं मतलब जो प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में, आई वुड से 80% ऑफ द सर्कमस्टांसेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किस किस भी लाइट चली जाए तो आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, नेटवर्क चला जाए, कोई आपके लिए कुछ कर दे, आप कुछ भी 80% चीजें आप नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन व्हाट यू कंट्रोल इज योर रिएक्शन टू दैट, कि आप उस चीज का रिएक्शन कैसे करते हो, आप उस चीज को पॉजिटिवली लेते हो, नेगेटिवली लेते हो, उस चीज को अपॉर्चुनिटी लेते हो, या उस चीज को ऐसे लेते हो कि लोग आपको दबा रहे हैं या दुनिया आपके अगेंस्ट है, राइट। तो कि यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड सी दैट एज अपॉर्चुनिटी। जो भी आपकी लाइफ में सेटबैक आ रहा है ना, उसको अपॉर्चुनिटी लो और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। अगर आप वो करोगे ना तो यू वुड सी विद टाइम यू आर
बीइंग सक्सेसफुल, आपको मतलब आपको आपके अगेंस्ट की सिचुएशंस बहुत मिलेंगी, लेकिन हाउ डू यू रिएक्ट टू इट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। आपका जो कैरेक्टर है वो दैट इज शोन बाय हाउ डू यू रिएक्ट टू सिचुएशंस, वेदर गुड और बैड। ठीक है, आज अगर आप एक अच्छी जगह प्लेस्ड हो, यू आर हेल्पिंग अदर्स, राइट, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट इज योर, यू आर पुट इन टू दैट सिचुएशन एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स, राइट। और उसका फ्लिप साइड भी हो सकती है, राइट। दिस इज, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि आप अपना कैरेक्टर सही कर रहे हो, आप अपना जो हर एक सेटबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी ले रहे हो और उससे बाहर निकलने की सोच रहे हो, उसके बारे में उसको नेगेटिवली ना लो। क्योंकि लाइफ में आप बड़े से बड़ा आदमी देख लो, छोटे से छोटा आदमी देख लो, जैसे जब जब किसी के पास कोई दिक्कत आती है, तो दैट इज द टाइम ईदर दे वुड जस्ट गो टू द नेक्स्ट लेवल और दे वुड जस्ट स्टैग्नेट देयर, या वर्स्ट केस नीचे आ जाएंगे। तो इट इज द चॉइस इज योर्स, इधर टेक पॉजिटिवली अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ो या उस पर रुक जाओ। तो आई थिंक मेरा तो यही रही है हमेशा, ज्यादा लोगों ने पुश किया है तो दैट एक्चुअली टू एक्चुअली गेट माई सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। ओके सर, तो आई गेस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था एंड आपने इसी क्वेश्चन में इस चीज़ का आंसर दे दिया। लाइक आई वाज गोइंग टू आस्क कि आपकी जो जर्नी है अभी तक, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर की तरफ शुरू किया और फिर आपने करियर स्विच करके आप मैनेजमेंट में आए, तो लाइक व्हाट वाज द थिंग जो आपको पूरे टाइम मोटिवेटेड करके रखी कि नाउ टेक दिस स्टेप, अब ये स्टेप, अब थोड़ा और ग्रो करते हैं, तो व्हाट वाज द थिंग जो आपको मोटिवेट कर रही थी? आई थिंक जो मोटिवेशन है एक तो यही कि लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब लाइफ में अगर आप कुछ सीख नहीं रहे ना, तो मतलब इट्स, मेरे पापा जैसे कहते हैं, इट्स अ हिल, इधर यू गो अप और यू गो डाउन, यू कैन नॉट स्टे एट वन पॉइंट। लाइफ इज लाइक अ हिल, मतलब या तो आप ऊपर चढ़ोगे या आप नीचे जाओगे। आप अगर एक जगह रुकने की कोशिश करोगे तो आप धीरे धीरे नीचे ही चले जाओगे। तो दैट लर्निंग हैज टू बी देयर। तो फर्स्ट थिंग इज लर्निंग, राइट। सो दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग, as a technology lover, I as somebody who has been with these companies, so what motivates me is the kind of end डाल सकते हैं ना आज कस्टमर पे जो इम्पैक्ट, the key thing motivates me, एंड यूजर, हमारा जो हमने जो किया वो उससे एंड यूजर को कितना फायदा हुआ, हमने क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व की। आई थिंक अगर आप जैसे ये कंपनी जो भी देखो, माइक्रोसॉफ्ट होगी, अमेजोन होगी, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी कंपनीज, they are business problem using technology, right? So अगर आप वो business, as you grow, even in your company or in even if you create your own company, it is more important to find complex problems and have simple solutions for it. And that is what motivates me, having complex problems, simple solutions, and end user impact. Along with that, scale of the system also is one of the things. जब ब्रेक होना शुरू हो जाए, तो देन दैट इज अनदर लेवल ऑफ चैलेंज, टेक्नोलॉजी चैलेंज लाइक टू फेस। सो नाउ कमिंग टू, जैसे मैंने शुरू में पूछा था सर कि स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कुछ बड़ी कंपनीज में पहुंचना, जिसमें जो फांग है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है। तो माइक्रोसॉफ्ट इन बड़ी कंपनीज में से एक है जो अपने मार्केट में काफ़ी टाइम से ही डोमिनेटिंग रही है। तो व्हाट इज़ द वर्किंग कल्चर सर? लाइक ऐसा क्या वर्किंग कल्चर है कि स्टूडेंट्स उसी को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड लोग उन्हीं कंपनीज के पीछे भागते हैं? तो व्हाट्स द वर्किंग कल्चर देयर? सो माइक्रोसॉफ्ट का जो कल्चर है ना, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ट्रूली रन्स ऑन ट्रस्ट। लाइक वन ऑफ द टैगलाइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट इज इट रन्स ऑन ट्रस्ट, राइट। व्हेन आई से ट्रस्ट, इट इज ट्रस्ट एट ऑल लेवल्स। मतलब अगर आप कल्चर देखोगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड दैट हैज आई थिंक, मैं माइक्रोसॉफ्ट का, दिस इज माय सेकंड स्टे एट माइक्रोसॉफ्ट। तो पहला वाज इन 2008 till 2010, राइट, एंड दिस इज अगेन सिमिलर इन सिंस आई जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर ही काफी कल्चर चेंज है जो पहले की माइक्रोसॉफ्ट थी वर्सेस अब की माइक्रोसॉफ्ट इज, बट आई
think जो Microsoft का core culture है, that is something that it trusts you as an individual. It trusts everybody, and it is like it is by default. It assumes and it gives you that authority to be autonomous and to create that impact. राइट तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की कल्चर की बात करें तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं which contributes to that culture, right? I would talk about two aspects of culture. एक तो जो माइक्रोसॉफ्ट का culture which is as what is preached and what is followed, and then I will also cover जो एक employee के हिसाब से कैसा culture है, right? तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कल्चर की बात करते हैं तो ये है that is one of the core कल्चर एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उसमें क्या है कि जब आपको मतलब यू आर बीइंग ऑनेस्ट इवन व्हेन somebody else is not seeing you, not observing you, right? बोलने में बहुत सिंपल है, लेकिन आई थिंक that happening in the company, that also is one of the reason why Microsoft is able to retain the trust of all the companies। अगर आप देखो तो माइक्रोसॉफ्ट के पास जो डेटा है, आप आप भी आउटलुक यूज करते हो, हर कोई आउटलुक यूज करता है, वर्ड्स यूज करता है, एक्सेल यूज करता है, वो एट द एंड माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे रिसाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट के पास जो डेटा है, if people stop trusting them, so Microsoft business ruins, right? So I think that ways this culture is very important. Then we have one Microsoft which is more internal to it, but it is more about ki we think as an organization and as for betterment of Microsoft rather than our team's betterment. जो एक जो पार्टिसिपेंट या जो एक एम्प्लॉय के हिसाब से कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो आई थिंक द बिगेस्ट चेंज व्हिच हैज हैपेंड एंड द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई सी पॉजिटिव थिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट इज किसी भी कंपनी जाओगे तो हीरोइज्म को बहुत सपोर्ट किया जाता है कि यार ये तूने कर दिखाया, ये तूने कर दिखाया, राइट? दैट इज वन ऑफ द थिंग, भाई ये अकेले इसने झंडा फहरा दिया, राइट? वो वाला जो पार्ट है ना, दैट इज वन वन थिंग ऑफ द कल्चर जो एक पॉसिबिलिटी है। whereas in Microsoft we talk about diversity and inclusion कि भाई वी वैल्यू कि भाई 10 तरह के लोग हैं तो सबके अपने 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 विचार होंगे, सबके अपने अपने सोचने का तरीका होगा। Respect everybody and we want to hear everybody. We want to ensure that everybody is included. We have a diverse environment and everybody is included. So that is one of the key of this like Microsoft culture. And secondly, वो heroism ना होके टीम स्पिरिट, इंक्लूसिवनेस, टीम स्पिरिट। सो अगर आप हमारा वो भी देखोगे ना, जब हम हमारी असेसमेंट होती है कि भाई हमने पूरे साल में क्या किया, जब हमारा वो होता है तो उसमें इट इज नॉट ओनली कि हमने अकेले ने क्या किया, राइट? हमें 3 लेवल पे वी आर इवेल्युएटेड, राइट? एक तो हमने एज इंडिविजुअल क्या किया, which is true for everybody, सबके यहाँ होता है, right? But at the same time, next level is कि आपने दूसरों की help कैसे की? How did you enable others? How did you help others to grow? How did you help others to be successful? So that is how Microsoft promotes team culture, and it is very much rooted in even in your performance reviews, and it becomes very important. And thirdly, how did you leverage other people's work? कि किसी और ने क्या काम किया, उसको आपने कैसे यूज किया? तो आप देख रहे हो कि उससे कल्चर एक हीरोइज्म से हटके एक टीम वाले में चला जाता है कि भाई एज अ टीम वी लाइक as an individual you can be a superstar, but if as a team you are not coming together then we don't need such superstars, because what we value is टीम में अगर सब इंक्लूसिवली काम करेंगे तो स्टडीज हैव शोन कि इनिशियली इट माइट बी कि इंडिविजुअली पीपल कैन आउटशाइन अदर्स, बट अगर एक टीम इकट्ठे मिलके काम करेगी and if we are able to create that culture which Microsoft is able to do it, then they can do wonders and everybody supports each other rather than everybody working against each other. So that is one of the culture thing which I really love about Microsoft. क्या मतलब इससे जहाँ तक मुझे सीखने को मिला कि वो टीम पे ज्यादा फोकस करते हैं, एज अ टीम पे बहुत, यस। और मतलब टीम पे में और एक जो दूसरा
कि और टीम पे सिर्फ फोकस कहने को नहीं करते, आपका दिन दिन एवरी डे वट एवर यू वर्क ऑन, that is visible, that people work towards getting team put together. Your performance cycles are such that you, when you write your connect, when you connect जो हमारा मीडिया, जो हम जिसमें हम अपने मैनेजर के साथ बात करते हैं कि भाई दिस इज हाउ आई परफॉर्म, तो इसमें यू हैव टू नॉट ओनली टेल अबाउट जो आपने इंडिविजुअली किया बट ऑल द थ्री स्क्वायर्स, right? So that is one. The second aspect, hey Om, are you able to hear me? Yeah. Okay, so the second aspect is जो हम Microsoft में काफी बात करते हैं, which has changed substantially with, like in recent past with the change in leadership, is growth mindset. So again that is about culture. जब हम एक दो टाइप के माइंडसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट. फिक्स्ड माइंडसेट में क्या है कि यू नो एवरीथिंग, राइट? दैट इज द कोर फिलॉसफी, दैट यू नो एवरीथिंग, and that's why you are kind of an SME. आप हर चीज जानते हो और आप बस उसमें करते हो, right? And second is growth mindset, where the core foundation, जैसे उसमें you know everything, उसमें core foundation है learn everything. I want to learn everything, right? तो उसमें the core assumption is आप सब कुछ नहीं जानते, लेकिन आप सब कुछ जानना चाहते हो. You have an inclination to learn things. So that essentially makes you open to failures. You want to venture into new things. You are okay failing on those, realizing your failure, making like learning out of that failure and going out for a new experiment. So that ways you are able to innovate really fast. You are able to say कि अगर आपने डिसीजन ले लिया तो दैट डजंट मीन कि यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन इट टू मेक दैट डिसीजन राइट. इट इज मोर लाइक यू हैव टेकन द डिसीजन, देन यू केम टू नो कि भाई ये गलत है, तो इट इज ओके टू रियलाइज दैट ये गलत है एंड नॉट जस्ट कंटिन्यू पुशिंग दैट कि भाई ये फिर भी हम करेंगे. इट इज ओके टू रियलाइज ये गलत है, हमने गलती की, उसमें हमने ये सीखा, अब हम नेक्स्ट इसके सीखने के बाद वी हैव learned a bit more, and now we are going for next experiment to learn more. So that ways you are able to innovate and you are able to like fail fast, innovate and fail freely and eventually be successful. Okay, I think experiment करें and जो learnings आई उस experiment से next experiment में follow. हाँ, मतलब गिरो, अपना झाड़ो, कपड़े झाड़ो और फिर भागो. मतलब भागने से मत डरो, भागोगे तो गिरोगे, लेकिन गिरने से मत डरो, भागो, उठ के भागना मेन है, फिर दोबारा भागना मेन है. So sir, coming to the last question of this section, like जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इन कंपनीज के लिए, एंड आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं जैसा कि आपने बताया, तो एज एन लाइक एम्प्लॉयर आप कैसे स्टूडेंट्स को बोलेंगे या क्या एडवाइस देंगे कि उनको क्या करना चाहिए जो फार्म कंपनीज हैं या जो टॉप लेवल कंपनीज हैं उनमें प्लेस्ड होने के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? I think सबसे पहले तो you should, as I said, सबसे पहले concepts पे ध्यान देना चाहिए. मतलब it is, don't take it, इंजीनियरिंग में कुछ को किसी भी चीज को ना थ्योरी पे मत लो, उसको ये देखो कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, what is the theory का concept क्या है, and understand that concept, right? So start from there, like understand everything rather than just ratification of things. ठीक है? So be ensure that you understand things, चाहे कम करो लेकिन you understand things and where they would be applied, right? जैसा कि आपका डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे अप्लाई होएगा और वो कहाँ पे उसकी क्या शॉर्टकमिंग्स है, राइट? सपोज जैसे आपका मैप है, तो मैप आप कहाँ पे, जहां पे आपको लुकअप बहुत फास्ट चाहिए वहां पे मैप लगाऊंगा, राइट? मैप की शॉर्टकमिंग्स क्या है, आप आइडियल मैप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट? ये सारी चीजें यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ एंड यू शुड थिंक फ्रॉम द एंड टू एंड पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट वो वाला, राइट? ये तो हो गया आपका तैयारी के टाइम पे. मतलब you should not focus on especially for these kind of companies, they don't want to know कि भाई आपने ये भी किया होना चाहिए, ये भी किया होना चाहिए, ये भी किया होना चाहिए. उनको ये है कि जो आपने किया हुआ है उसकी डेप्थ में होना चाहिए, राइट? You should understand to the depth कि भाई क्या चीज कैसे चल रही है,
राइट. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू बी वेरी अपफ्रंट एंड से कि भाई ये हमें आता है, और सिर्फ रिज्यूमे को बढ़ाने के लिए मत लिखो कि ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है. जो चीज सही में की हुई है, जिसमें यू आर कंफर्टेबल एंड यू कैन आंसर क्वेश्चंस, चाहे वो कम है, कीप इट स्मॉल बट एंश्योर दैट यू हैव डेप्थ फॉर इट, राइट. उसमें मेजरली आपका कोडिंग आ गया, एल्गो, डीएस, और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो तो डिजाइन डिस्कशन आ गई. तो जनरली ये सारी चीजें आपकी इनिशियल लेवल्स पे पूछी जाती हैं. तो एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, यू अंडरस्टैंड दोस एल्गोस, हाउ हाउ यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस एल्गोस, कि भाई ये एल्गो इससे बेटर क्यों है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये फंक्शनल है या नहीं. डेटा स्ट्रक्चर्स में यू शुड बी एबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट कि किस सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा और क्यों लगेगा, राइट. कि भाई यहाँ पे ट्राइज लगेगा, या यहाँ पे मैप लगेगा, या यहाँ पे सिंपल लिंक लिस्ट लगेगी, या डब्ल्यू लिंक लिस्ट लगेगी. सो थिंक फ्रॉम दोज टर्म्स, लाइक जस्ट एंश्योर दैट यू आर एबल टू यू अंडरस्टैंड कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर की क्या पावर है और क्या उसकी शॉर्टकमिंग्स है, क्या चीज कहाँ पे नहीं लग सकती. ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रिपरेशन के टाइम पे. उसके बाद ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, राइट, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई थिंक यू शुड फर्स्ट एंश्योर दैट जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, जस्ट find out what are your assumptions, and you can actually validate those assumptions with the interviewer. And it is taken very positively that if you validate your assumptions. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि if a simple question है कि भाई सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकाल दो इंटीजर में, ठीक है. तो अगर यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड आस्क भी इंटीजर की नेगेटिव नंबर्स भी होंगे क्या, रिपीटेड नंबर्स भी होंगे क्या, क्योंकि दीज आर ऑल योर assumptions and these can actually change the how you are getting to the final answer, right. तो validate your assumptions, call out those assumptions. क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो ask clarifying questions, कि अगर कोई ambiguous question है तो you can ask clarifying questions. You should see कौन से constraints लग रहे हैं सिस्टम में, क्या है. So you should do that. Then when you come to after that, like you will go through that algo, you will talk about कि भाई ये चीज यहाँ पे लगनी चाहिए. Then you should as part of coding, you should ensure that before submitting your code you test it thoroughly. और वो you should write those test cases कि भाई ये test cases मैंने रन किए हैं, ये ट्राई रन किए हैं. क्योंकि कई बार आप जब ट्राई रन करते हो तो कुछ बड़े ब्लंडर्स होते हैं जो एकदम आपको ही मिल जाते हैं. So that is taken very positively, that you wrote something, you tested it, and you were able to find your mistakes by yourself. So that is really good. Then like after thoroughly testing it, ensure that it is modular code. आपका कोड के फंक्शंस जैसे बड़े बड़े नहीं हो गए. अगर कोड में आपको रिडंडेंसी दिख रही है, सेम कोड स्निपेट दो तीन जगह दिख रहा है, तो इट इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी टू मॉड्यूलराइज इट. तो उसको मॉड्यूलर बना दो. एंश्योर दैट इट इज फंक्शनल. तो एंड इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक तो उसका आप कमेंट्स उसमें लिख सकते हो. उसके बाद जैसे आप वेरिएबल नेम्स जो लेते हो कोडिंग में, जस्ट एंश्योर दैट दोज वेरिएबल नेम्स आर नॉट लाइक ABCD. इट शुड बी समथिंग विच रिप्रेजेंट्स, जैसे अगर मैक्स है तो मैक्स इनपुट आउटपुट ऐसे करके, which would help you in coding also, as well as आप जब मेंटेनेबिलिटी की बात करोगे, नेक्स्ट मेंटेनेबिलिटी में क्या रहता है, जब हम प्रोडक्शन लाइव सिस्टम्स में आते हैं तो जो आप कोड लिखते हो वो आप रहो या ना रहो उस टीम में, उस कंपनी में, वो कोड आपका वहां पे रहेगा नेक्स्ट 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, राइट. सो मेंटेनेबिलिटी सेज कि भाई other person whoever is taking over that code should be able to do it in minimal amount of time. ठीक है, तो उसमें हम मेंटेनेबिलिटी देखते हैं कि भाई नॉमेनक्लेचर सही है या नहीं, उसकी फंक्शनैलिटी सही है. सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड आई थिंक ये दैट शुड हेल्प यू प्रिपेयर. और हाथ से कोड लिख के बहुत प्रैक्टिस करो. मतलब डोंट यूज आईडीज विच आर ऑटो कंप्लीट, क्योंकि कई बार आपको इंटरव्यू में हाथ से लिखना पड़ेगा, या कोई ऐसी आईडी मिल गई जहाँ पे ऑटो कंप्लीट नहीं है. तो you should ensure that you are writing it and you know it end to end. So that's all the questions, and we got आपने सबका ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है सर आपका, उसके बेसिस पे आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए. एंड आई गेस ये सारे ही आंसर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा
मैटर करेंगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे. So coming to the end, sir, I once again thank you for joining us today, and that's all for today. Thanks, Om. Thanks for hosting it. Yeah. I hope लोग feel free to like reach out to me if you want for any future things. Okay. Thank you. Okay.